covetousness is the secret sin that robs us of the joy of God. लोभी स्वभाव ये गुप्त पाप है जो परमेश्वर के आनंद को हमारे जीवन से चुरा लेता है। Shalom, we welcome you to this devotion in the name of Jesus. Shalom, इस डिवोशनल में हम आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु के नाम से। I believe that you all are aware that we are on a series which is titled as covetousness. हम सभी जानते हैं कि हम श्रृंखला में हैं जिसका शीर्षक है लोभी स्वभाव। Yesterday we saw the part 1 to this series कल हमने इस श्रृंखला के पहले भाग को देखा and learned some of the vital things about this evil called और covetousness. महत्वपूर्ण बातों को सीखा इस लोभी स्वभाव को लेकर। Enemy always deceives us and does not make us to know what is really covetousness. शत्रु जो है हमेशा हमको भ्रम में रखना चाहता है और चाहता है कि हम देखें नहीं कि हकीकत में लोभी स्वभाव या प्रवृत्ति क्या है। Yesterday we looked at least 4 things that forms the covetousness. देखिए हमने कल 4 बातों को देखा जिसकी वजह से कोई लोभी या लालची ठहर सकता है। Now when we say covetous, it is when we want the status and not to serve, that is when we are coveting something. देखिए जब हम वो ओहदा को चाहते हैं, वो रुतबा को चाहते हैं, लेकिन हम सेवा नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोभी हो जाते हैं। Yesterday the second point that we saw was और कल जो दूसरा पॉइंट हमने देखा, when we want the right thing for the wrong reasons, that we are coveting something. हम सही चीज को चाहते हैं लेकिन कारण गलत है तो हम लोभी ठहरते हैं। Number 3 thing that we learned yesterday, तीसरी बात जो हमने कल सीखा, when we seek something that is right at the wrong time, we are still coveting there. जब हम चाहते हैं सही चीज को लेकिन गलत समय में, तब भी हम लोभी ठहरते हैं। Number 4 thing that yesterday that we learned और चौथी बात जो हमने कल सीखा, is when we desire the right thing in the wrong amount, we are coveting that. जब हम सही चीज की लालसा करते हैं लेकिन जो मात्रा है वो मात्रा जो है हम ज्यादा चाहते हैं, सही मात्रा में नहीं चाहते हैं, तो वो भी लालच या लालचीपन ठहरता है। This morning that the Lord Almighty want to speak to us more, exposes more truths about covetousness. और इस सवेरे के वक्त ये लालची प्रवृत्ति या लोभी स्वभाव को लेकर परमेश्वर और खुलासा करना Let's चाहते हैं। open our Bibles to Exodus chapter 20 verse 17. आइए पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 17वां वाक्य। There we can definitely see the sin of covetousness mentioned in the 10 commandments of the law. वहाँ पे जो है हम देखते हैं व्यवस्था में जो आज्ञाएं 10 आज्ञाएं दी गई थी, उनमें जो है एक आज्ञा ये लालचीपन को लेकर, लोभीपन को लेकर है। Here it says, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor female servants, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. निर्गमन 20 और 17 पढ़ रही हूँ, लिखा हुआ है, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। In this particular verse, you can see how the Lord explains to Israelites the 3 things that they cannot covet. और इस वाक्य में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है वो आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं इजरायली लोगों को कि 3 बातों की लालच आपने नहीं रखनी है। He says, do not covet for the property of your neighbor. आपने पड़ोसी के जायदाद की लालच मत रखना। Number 2, he said that do not covet the portions of your neighbor. और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनकी लालच न रखना। He explained very beautifully, nor wife, nor the male servant, nor the female servant. बहुत ही सुंदर रीति से कहा गया है, किसी और की पत्नी, पति या दास दासियां। And the third thing that you cannot covet the pack of animals that belongs to your neighbors. और जो तुम्हारे पड़ोसी के बैल गधे हैं उसकी भी लालच न करना। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that is how great evil it is to covet. और देखिए ये घोर एक दुष्ट बात है और इसको हम हमारे जीवन में हमने नहीं रखना है। Now, I want us to understand, rather the Lord wants us to understand, why do we covet in the first place? अब जो है हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझ जाए कि हम क्यों लालच क्यों करते हैं, लोभी क्यों बन जाते There हैं। are at least 2 reasons that you want to teach us this morning. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर 2 कारण हमको सिखाना चाहते हैं। Please understand the number one thing is this, that
New birth doesn't mean automatically that you will stop coveting. और देखिए ये बात को पहले समझ लीजिएगा, आपका जो नया जन्म हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप जो है वो लालची प्रवृत्ति आपसे निकल जाएगी। Old nature keeps on popping up in us. और देखिए वो पुराना स्वभाव जो है हमारे अंदर बार बार आने लग जाता है। There is a new man in us. हमारे अंदर वो नया मनुष्य That new है, man is constantly opposing, but the old nature in us is also constantly opposing the new nature. और देखिए जो हमारा नया स्वभाव जो है, जो नया जन्म मिलने पर हमारा नया स्वभाव है, वो हमारे पुराने स्वभाव के साथ इन दोनों में संघर्ष रहता है। There is a constant battle between these two natures. और ये दो स्वभावों में निरंतर हम देखते हैं एक संघर्ष बना रहता The है। old nature often prevails because it is flesh and we are living in flesh and blood. और पुराना जो हमारा स्वभाव है वो मानो विजयी हो जाता है, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं और इसीलिए शारीरिक बातें जो है वो मानो हावी हो जाती हैं। When we allow that weak movement to become a strong movement against the spirit, that is when we fail and fall. जब वो दुर्बल पल को जो है हम होने देते हैं कि वो जो है बलशील हो जाए, तब जाकर हम गिर जाते हैं। That is why we often covet for things that doesn't please God. इसीलिए फिर हम लोभी बन जाते हैं और लालच रखते हैं उन बातों की जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। Number 2 reason why do we covet? और दूसरा कारण क्यों हम लालच करते हैं। Most of the time that we dwell in our desires, when we dwell in our desires more than what is needed, that is when we begin to covet. और बहुतों बार हमारी इच्छाओं में हम बने रहते हैं और जो हमें ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा अगर हम इच्छा करते हैं तब जाकर जो है हम लोभी ठहरते हैं या फिर हम लालची बन जाते हैं। Please understand one thing very clearly. इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ When लीजिएगा। we desire something, जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं we begin to embellish it. तो हम फिर चाहते हैं कि वो हमारा हो जाए We begin to empower it. और फिर हम उसको मानो शक्ति दे देते हैं। We begin to dream of it. हम उसको लेकर स्वप्न देखने We लग जाते हैं। begin to crave for it, and we feel without that particular thing, our life is not good enough. फिर हम उसकी लालसा करने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसके बिना इस चीज के बिना हमारा जीवन अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता है। That thing becomes so attractive to us. तो वो बात, वो चीज, वो व्यक्ति जो है इतना आकर्षित हो जाता है We feel without it we are nothing. और हम ये सोचते हैं कि इसके बिना या इस चीज के बिना हम कुछ नहीं है। We begin to esteem it much higher than what it is actually. हकीकत में जो है उससे भी बढ़कर फिर उसको हम रख देते हैं। We begin to reason within ourselves and say कि this is a must for me to have. हम फिर तर्क और वितर्क लगाने लग जाते हैं और फिर कहने लग जाते हैं अपने आप से कि ये तो जरूरी है मेरे जीवन में होना। Galatians 6:7 says something very beautiful. गलातियों की किताब में 6 अध्याय 7वां वाक्य, It says, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that he shall also reap." हम गलातियों की किताब में देखेंगे, गलातियों की किताब 6 and 7. 6 अध्याय और 7वां वाक्य हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। When we dwell too long in our desires, जब हम अपनी इच्छाओं में बहुत समय तक बने रहते हैं, we begin to sow the seeds and say that without it I cannot live. हम इस प्रकार के बीज को फिर बोने लग जाते हैं कि हम इसके बिना जी ही नहीं सकते हैं। It's just a matter of time before we fall when we dwell too long in the wrong desires. और देखिए सिर्फ समय की देरी होती है और हम आगे चलकर गिर जाते हैं। What we sow in our thoughts, जो हमारे विचारों में हम बोते हैं it will come in the form of harvest of wrongs. तो फिर गलत हम जो है काटेंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, covetousness maximizes our desires and minimizes our dangers. लालच जो है हमारे इच्छाओं को बढ़ाता है और खतरा जो है वो भी कम हो जाता है।
When Achan went out and stole that piece of gold, और जब आखान जाकर वो सोने के उस चीज को चुरा लेता है, when Achan's eyes fell on the piece of gold, जब आकान की नजर जो है वो सोने के टुकड़े पर पड़ी, the spirit of covetousness rised in him and made the desire maximized. And he looked around and nobody was there, and he saw the danger of him being caught minimized, and that's why he stole. और क्या हुआ कि वो लालच उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और उसके वजह से जाकर जो है इच्छा उसमें इतना ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे जो खतरा है, ये करने की वजह से जो खतरा है, वो खतरे को उसने नज़रअंदाज कर दिया। When Ananias and Sapphira saw जब अनानियास और सफीरा ने देखा that nobody saw how much money they got by selling the property, किसी ने तो नहीं देखा कि उन्होंने जो जमीन बेचा था, जायदाद बेचा था, उनको कितना मिला, किसी ने नहीं देखा the था। desire to save some money for themselves was maximized by the spirit of covetousness and also minimized the danger of somebody seeing they are hiding something. और देखिए ये जो लालच की दुष्ट आत्मा के वजह से या दुष्ट प्रवृत्ति या दुष्ट स्वभाव के वजह से ये इच्छा उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने उसमें जो है अपने आप के लिए थोड़ा रखने में कोई खतरा नहीं देखा। Please understand this one thing very clearly. आप इस बात को स्पष्ट रीति से समझ लीजिएगा। You need to stop dwelling in your desires. अपनी इच्छाओं में बने रहना बंद कर दीजिएगा। How will you do away with the covetousness? आप जो है ये लालचीपन से कैसे दूर हो सकते हैं? Just stop desire. Just stop dwelling in your desires. अपनी इच्छाओं में बने रहना बंद कर दीजिएगा। When you stop dwelling in your जब desires आप ऐसा करना बंद कर देते हैं and begin to focus on God और नजर जो है परमेश्वर पर लगाना शुरू कर देते and हैं things of God, और परमेश्वर की चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, if it is a thing which pleases God, अगर वो कोई बात है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता when it है, is the right time, जब सही समय He आएगा will supernaturally provide it तो for you. बहुत ही अलौकिक रीति से परमेश्वर वो बात को आपके जीवन में दे देंगे। You don't have to struggle nor strive. आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will have it in your lap without even you asking for वो it. आपकी गोदी में आ जाएगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Please understand. आप इसको समझ लीजिएगा कृपा कर Learn to change your focus from dwelling in the desire to God. आप अपने ध्यान को हटाइएगा, आप उस इच्छाओं में बने मत रहिएगा, आप सीख लीजिएगा कि परमेश्वर पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। It belongs, covetousness belongs to the old nature. और देखिए लालची स्वभाव ये पुराना स्वभाव है या पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव है। I want to read one particular verse, Romans chapter 8 verse 5. मैं एक वाक्य को पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 5वां वाक्य, Before we conclude this devotional this अंत करने morning. से पहले। It says, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. लिखा हुआ है रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 5वां वाक्य, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। If you understand this particular verse, I'm telling you, you can effectively do away with the spirit of covetousness. अगर आप इस वाक्य को समझ लेते हैं तो आप ये जो लालच या लोभ के स्वभाव को अपने जीवन से दूर रख सकते It हैं। says, those who live according to the flesh, set their minds on the things of the क्योंकि flesh. शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। I was just saying that dwelling too long in our desires is dwelling in our flesh. और देखिए अगर हम अपनी इच्छाओं में बने रहते हैं तो हम शरीर की बातों में मन लगा रहे हैं। But if we dwell on the things of the Spirit, यदि लेकिन हम आत्मा की बातों पर अपना मन लगाते हैं, we will get all those things in the Spirit. तो हम जो है वो सारी चीजों को अपने जीवन में हासिल कर लेंगे आत्मा में। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if there is anything that you ever need more and more and more is God and nothing apart from God. अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर और परमेश्वर है। इनको छोड़, परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं If है। you have Him, अगर परमेश्वर है all other things will be added to तो it. सारी
बातें अपने आप हमारे जीवनों में जुड़ जाएंगी। Only desire that you and I need to have is Him. और देखिए, हमने उनकी इच्छा रखना है बस। Let's set our minds on Him. हम अपने मन को उन पर केंद्रित करते हैं। With these thoughts in heart and mind, इन विचारों को अपने हृदय में और मनों में रखते हुए let's go into the day. हम दिन में जाएंगे। The Lord who loves us परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते will हैं, surely make us to focus on the things above. वो निश्चय ही ऐसा होने देंगे कि हम अपना मन जो है स्वर्गीय बातों पर लगाएं। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे। have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।